Hello, students. We will start chapter 9 of class 6 Life in Towns and Villages. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि शहरों में और गाँव में क्या फ़र्क होता है, वहाँ का लाइफस्टाइल कैसा होता है और किस तरह से जो गांव हैं वो शहर में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। स्टार्ट करेंगे डिफ़िकल्ट वर्ड से। अर्बनाइजेशन, टू टर्न इनटू अ सिटी। इसका मतलब जब कोई भी जगह, कोई भी गांव शहर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे अर्बनाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है पैट्रोनेज, सपोर्ट और एनकरेजमेंट और प्रमोशन। पैट्रोनेज का मतलब होता है प्रमोट करना, किसी को हौसला देना या किसी को एनकरेज करना कोई भी काम करने के लिए। नेक्स्ट इज़ ऑप्रेसिव, हार्श और क्रूअल, डिफ़िकल्ट टू बियर। जो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो सकती उसे बोलते हैं ऑप्रेसिव। अब स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। New cities came up in India in the later Vedic period after iron came into use. With the help of irons, axes, forest could be cleared more easily and more land could be bought under cultivation. Villages thrived, and after the development of kingdoms, there was a remarkable rise in the number of cities in both North and South India. Our knowledge about these cities have been drawn mainly from archaeological remains discovered at the site of the cities and Buddhist literary works such as Jatak Tales. We get information about the South Indian cities mainly from Sangam literature. This literature was compiled from Tamil presentation made by scholars and poets at three assemblies held at Madurai under royal patronage. तो जो सिटीज़ की डेवलपमेंट थी वो आयरन के आने के बाद शुरू हो गई, क्योंकि आयरन की हेल्प से जो लोहे की कुल्हाड़ियाँ होती थी उसकी हेल्प से जो जंगल हैं उन्हें ईज़िली रिमूव किया जा रहा था और उनकी जगह पर उन्हें काट कर कल्टीवेशन की जा रही थी। तो इसके कारण काफ़ी तेज़ी से शहरों का विकास होने लग गया, मेनली नॉर्थ और साउथ साइड में। इन सब शहरों के बारे में पता चलता है पुरानी चीज़ों से जो कि टाइम टू टाइम डिस्कवर होती रहती हैं, जैसे कि बुद्धिस्ट की जो लिटरेरी वर्क था, जो उनकी रचनाएं थी, उनकी जैसे जतक टेल्स, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन पता चली। जो साउथ की सिटीज़ थी उनके बारे में संगम से पता चलता है, जो संगम लिटरेचर थी उनके थ्रू पता चलता है। तो इस तरह ये सारी जितनी भी आर्कोलॉजिकल चीज़ें थी, कुछ बची हुई जो डिस्कवर हुई बाद में, उनके थ्रू ये सारी जानकारी मिलती है कि कौन सी सिटीज़ कब एमर्ज हुई थी। The use of iron began in the Indian subcontinent around 3000 years ago. The largest collection of iron tools and weapons has been found at the megalithic burial sites during the Chalcolithic age. तो आयरन का मतलब लोहे का जो इस्तेमाल है वो इंडिया में 3000 साल पहले से ही होना शुरू हो गया था, और सबसे ज़्यादा जो इसकी मात्रा है और इसके जो लोहे के जो वेपन्स होते थे, हथियार होते थे, वो कहाँ पाए जाते थे? मेगालिथिकल बुरियल साइट्स पे। अब स्टार्ट करेंगे सेकेंड, अर्बनाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज एक्सट्रीमली एन अर्बन सिविलाइजेशन. It was followed by the Vedic civilization, which was essentially village based or rural in character. So, it was not until the age of Mahajanpadas that towns started emerging once again. During the Maurya Empire, many prosperous urban centers came up. Intensification of agriculture, the growth of crafts, and the increase in trade and commerce led to the growth of cities from about 400 BC. Historians have referred to this age of second urbanization, the age of Buddha. Obviously, the first one had taken place during the age of Harappa civilization. In the period of second urbanization in the Gangetic plain, the emergence of towns and cities was not uniform. Some cities such as Hastinapur became political and administrative centers. Later reference mention the capital of kingdoms such as Rajagriha in Magadha, Shravasti in Kosla, Koshambi in Vatsa, and Champa in Anga. Other cities grew out of markets that catered to a variety of villages. They were usually located where there was agriculture surplus and where exchange could take place. Exchanges occurred between essential items such as grain and salt. Cities also grew out of sacred centers where people gathered, as in the case of Vishali. Koshambi was one of the earliest town. तो इसमें हमें ये बताया कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वही अर्बन सिविलाइजेशन थी,
और ये महाजनपदास के टाइम पे जो टाउन्स हैं वो दोबारा से दिखने शुरू हो गए थे, दोबारा से उनकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई थी। लेकिन जो मौर्य एम्पायर चल रहा था उनके टाइम पे क्या हुआ, जो सेंटर्स थे या फिर जो लोग थे उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट करा, उनकी ग्रोथ हुई आयरन से। जब आयरन की पुलाव मशीन्स बनने लग गई तो उससे क्या हुआ कि लोगों को खेती में आसान हो गया खेती करना। तो इस कारण से है वो धीरे धीरे अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते गए और वो जो सिटीज़ की ग्रोथ है साथ साथ वो भी होती रही। तो इसी पीरियड को सेकेंड अर्बनाइजेशन का नाम दिया गया है, जो कि बुद्धा के टाइम पे हुई थी। और जो फर्स्ट सिविलाइजेशन है, फर्स्ट अर्बनाइजेशन, वो हुई थी हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम पे। और साथ ही साथ ये भी बताया पैराग्राफ में कि सेकेंड अर्बनाइजेशन के टाइम पे जो सिटीज़ थी या जो टाउन्स थे, कस्बे थे, जो वो बन रहे थे, लेकिन वो यूनिफॉर्म मतलब एक सार नहीं बन रहे थे। कुछ जगहों पे या कुछ सिटीज़ को, जैसे कि हस्तिनापुर, उन्हें पॉलिटिकल एरियाज़ में डिवाइड कर दिया गया, उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स बना दिया गया। लेकिन बाद में कुछ जैसे राज्यों की कैपिटल्स भी बना दी गई थी, जैसे कि राजगृहा, मगधा में राजगृहा, श्रवस्ती कोसला में, और कुशंभी वत्सा में, और चंपा अंगा में। बाकी के जो बचे हुए शहर थे वहाँ पर उनमें जो है मार्केट्स बनाए गए, बाज़ार बना दिए गए, और उन बाज़ारों के आसपास काफ़ी सारे विलेज थे। और ये यूजुअली ये वहाँ पे होते थे जहाँ पे जो खेती है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती थी, ताकि वो कुछ भी लोग खरीद सकें, क्योंकि पहले पैसों की बजाय लोग सामान से सामान देकर खरीदते थे। जैसे गेहूँ दे दिया और कुछ खरीद लिया, तो इसलिए ज़्यादातर ये मार्केट्स कहाँ पे होती थी, जहाँ पे जो खेती बाड़ी है, जो एग्रीकल्चर है, वो ज़्यादा किया जाता था। तो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम फीचर ऑफ दिस पीरियड। मैनी टाउन्स आर मेंशन्ड इन पाली एंड संस्कृत वर्क्स। सम ऑफ दीज वर कोसंबी, श्रवस्ती, अयोध्या, वाराणसी, पाटलिपुत्र एंड राजागृहा. The main feature of this period were the use of iron tools and implements, the use of northern black polished ware, use of burnt bricks, use of metal money, discovery of ring wells. Ring wells are row of pots or ceramic rings placed one on the top of other. These were used as toilets or as drain pipes or garbage bins. Expansion of agriculture because of use of better tools and improved method of irrigation. तो इस टॉपिक में हमें अर्बनाइजेशन के फीचर्स के बारे में बताया गया है। तो जो टाउन्स के नाम थे वो पाली और संस्कृत वर्ड्स में लिखे गए थे, और उनमें से कुछ टाउन्स थे कौसंबी, श्रवस्ती, अयोध्या, वाराणसी, पाटलिपुत्र, राजागृहा, और उनके बारे में बताया गया फिर फर्दर। इसमें बताया कि वो आयरन टूल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, जो लोहे के बने हुए चीज़ें थी उनका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, और जो ब्लॉक पॉलिश्ड वेयर थे उनका इस्तेमाल किया जाता था, जली हुई ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था, मेटल के जो सिक्के होते थे उनका इस्तेमाल किया जाता था। रिंग वेल्स को डिस्कवर करा गया। तो रिंग वेल्स क्या थी, जो पोर्ट्स होते थे, घड़े होते थे, उसकी एक रो बना दी जाती थी, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, और उसको एज अ गार्बेज बीन्स और ड्रेन पाइप्स की तरह यूज़ किया जाता था। अगले पॉइंट में बताया है कि एग्रीकल्चर भी काफ़ी बढ़ गया, किसकी वजह से, क्योंकि जो लोहे के अच्छे अच्छे टूल्स आने लग गए, इरिगेशन के मेथड आने लग गए, तो इसलिए जो हमारी खेती है वो भी काफ़ी बढ़ने लग गई। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।